We are starting with questions from, look, up to question number 17 we had already discussed. We are starting with question number 18 now. That is based on kinematics in 2D. Kinematics in 2D. Now, kinematics in 2D में very first is question number 18. We are starting with question number 18 because up to 17 we had already solved. Now, 18th में they have said a body of mass 2 kg has an initial velocity of 3 meter per second along OE and is subjected to a force of 4 Newton in OF direction perpendicular to OE. The distance of the body from O after 4 seconds. Students, actually they have given a diagram. They have named this as E and this is named as F and this is O. And this distance, let's name D. This distance, suppose ये D है और ये D हमें फाइंड आउट करना है, आपको ये D फाइंड करना है. अच्छा स्टूडेंट्स, उनका डेटा क्या है? A body of mass 2 kg. So mass of the body is 2 kg. Has velocity initial of 3 meter per second along OE. So OE के along 3 meter per second. So let us assume कि that is velocity in x direction. Velocity in x direction, and they have given that as 3 meter per second x direction. Next is it is subjected to a force of 4 Newton along a direction perpendicular to OE. मतलब OF के along I can write force in y direction, and that force in y direction in magnitude that is 4 Newton. अच्छा students, x direction में there is no force, so velocity 3 meter per second, तो ax will be 0. अच्छा velocity in y direction is 4 Newton, तो acceleration in y direction a is f by m which is 4 by 2 which is 2 meter per second square, 2 meter per second square. So again ये जो motion है, it's a combination of two motions, horizontal motion with constant velocity and vertical motion with constant acceleration. But make sure इस बार this is not motion under gravity because acceleration is 2 meter per second square. अच्छा अब आपको ये D find करना है. After what time? 4 seconds. आप ऐसे assume करो students, in 4 seconds projectile, rather this body covered, लेट्स टेक x मीटर. सपोज करो कि ये x है और ये y है, ये y है. आपने बॉडी को जो प्रोजेक्ट किया जिसकी वेलोसिटी x में 3 मीटर पर सेकेंड और y में फोर्स वाज 4 न्यूटन, इन 4 सेकेंड इन x डायरेक्शन, rather along OE body traveled x meter and along y direction body has traveled y meter. अगर मुझे x और y मिल जाए तो मैं d फाइंड कर लूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. नाउ सबसे पहले इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कैन आई से स्टूडेंट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्टूडेंट्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आई कैन यूज द फॉर्मूला कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस is equals to horizontal speed into time. तो horizontal distance is x, horizontal speed is 3 and time taken is 4, so that is 12 meter. तो body covered 12 meter in 4 seconds along OE. Now in y direction, can I say students in y direction, if I use the formula s equals to ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज में ले रहा हूं y. अच्छा अगर आप वैसे देखो तो नेगेटिव है तो माइनस y ले लो, u का वैल्यू विल बी 0 प्लस हाफ टाइम्स बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वाज 0. अच्छा हाफ टाइम्स व्हाट इज a? कैन आई से स्टूडेंट्स हियर a का वैल्यू इज 2 एंड टाइम इज 4 द होल स्क्वायर. नाउ दिस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, सो -2, लेट्स राइट इट -2. अच्छा हाफ AT स्क्वायर, 2 gets cancelled, minus gets cancelled, तो y comes out to be 16 meter. अच्छा students, since d, this d is the hypotenuse of x and y, so d is nothing but under root of x square plus y square. So that is nothing but under root of, what is value for x?
12 द होल स्क्वायर प्लस 16 द होल स्क्वायर. तो 12 होल स्क्वायर 144, 16 होल स्क्वायर इज 256. So under root of 400, this is equals to under root of 400, and that comes out to be 20 meter. So this distance in 4 seconds is how much? 20 meter, and this matches with option D. इसका जो right option बच्चे वो option D है. अच्छा, अब let's go for next question. Question number 19 now. Question number 19. Now, a ball is projected upwards from the top of a tower with velocity 50 meter per second, making an angle 30 degree with horizontal. Students, again I repeat the question. Ball is projected upward from the top of a tower with velocity 50 meter per second at an angle 30 degree. तो पहली बात तो ये कौन सा केस है? Can I say it's a oblique projectile from a height h? अच्छा, so if I draw this diagram, let's consider this is the tower and this is ground. Height of the tower, students, they have given is 70 meter. This height given is 70 meter, and the body is projected from top of a tower with velocity 50 meter per second. Body यहाँ projected है with a velocity u is equals to 50 meter per second at an angle of 30 degree. तो students, definitely this body is going to follow this very path. ऐसे ये पाथ फॉलो करेगा बॉडी, एंड दिस वेलोसिटी इज टैंजेंशियल टू द पाथ. सो दिस इज द टैंजेंट. अच्छा, ओके, विथ हॉरिजॉन्टल दिस एंगल दे हैव गिवन 30 डिग्री. ओके, thereafter they say after how many seconds from the instant of throwing will the ball reach the ground? बॉल ग्राउंड पर कितने समय के बाद आएगा? सपोज करो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. अच्छा, वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट आई विल डू इज, very first step, first resolve this velocity into two components. Can I say, students, it's horizontal component and this is vertical component. Horizontal will be u cos 30 and this is u sin 30. Can I say this is u sin 30? अच्छा, u का वैल्यू इज 50, sin 30 इज हाफ, सो दिस कम्स आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, आपको फाइंड करना है आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल रीच द ग्राउंड. तो सबसे पहले कंसिडर मोशन. स्टूडेंट्स, वी आर कंसिडरिंग मोशन. कंसिडर मोशन फ्रॉम A to B. I am considering motion from A to B, but in vertical direction. Let's refer this case in vertical direction. Now, students, in vertical direction, I will write displacement in y direction is uy plus half times ay into t square. When body went from A to B, its vertical displacement is 70, but in downward direction. So it has to be minus 70. Initial velocity in y direction u sin 30 and u is 50, sin 30 is half, so it's 25, but that is in upward direction, so I must write plus 25. It is ut into t plus half times, can I say ay, well, acceleration in y direction is minus 10 multiplied by t square. Students, when I solve one more step, I am going to have minus 70 is equals to 25t minus 5t square. Now divide throughout by minus 5. So this will be minus 14, sorry minus 5 से divide करें ना तो 14 आ जाएगा, which is equals to minus 5t and then plus t square. Rearranging these terms will give me t square minus 5t minus 14 is equals to 0. तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट शुड बी 14 and addition and subtraction must be minus 5. So I can write t square minus 70, t square minus 70 plus 2t minus 14 is 0. Now if I take t common, तो bracket is t minus 7 plus 2 times t minus 7 the whole is 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे मिलेगा t minus 2 and then t plus 2, t plus 2 the whole is 0. So यहाँ से आपको मिलता है t is equals to 7 seconds
or t is equals to -2 seconds. But you know students, time cannot be negative, so our answer must be 7 seconds. Means time taken by the body to reach ground will be how much? 7 seconds. So right option will be 7 seconds. इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स ऑप्शन जो है वो मैच नहीं करेगा, यू हैव टू मेक करेक्शन. क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन इज 7 seconds. So whenever you have a question based on oblique projectile projected from certain height, go with these working. जब भी टाइम पूछे तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व करो, यूज सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल हैव द आंसर. So this was the solution for question number 19. Now students, let's refer question number 20. Now 20 will be an important question. Let's refer कि कैसे solve करेंगे उसको. Question number 20 का solution देखते हैं. Okay. Now students, let's discuss question number 20. Now question number 20, they have said a staircase contain 3 steps, each 10 centimeter high and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so as to hit directly the lowermost plane? Now here students, they have given a diagram. उनका diagram is like this. Somewhere here we have a ball. ये बॉल है. अच्छा, उन्होंने इसको हाइट h बोला है. दिस इज h एंड दिस इज b. एंड उनके डेटा के अकॉर्डिंग h इज हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड b ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर. अच्छा, दे से कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी. नाउ स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला कि बॉल की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए. विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी द बॉल शुड बी रोल्ड ऑफ सो दैट इट हिट्स द लोअर मोस्ट प्लेन, वो इस प्लेन को हिट कर सके. उसे ये वाला प्लेन को हिट करना है. अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहां से बॉल लोअर मोस्ट प्लेन इसे हिट करना है. अब देयर आर चांसेस कि मैंने बॉल को रोल किया और वो ऐसे आ गया, ऐसे आके गिर गया. अगर वो यहां पर हिट करता है तो आवर टास्क वोंट बी कंप्लीटेड, बिकॉज मुझे उसको वेलोसिटी इतनी देनी है कि वो इसे हिट करे. मैंने वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ा ली और ये बॉल सपोज करो कि ये ट्रैजेक्टरी फॉलो करके यहां पर आ गया. कहने से अभी भी ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ. आपका टास्क कब कंप्लीट होगा? कहने से स्टूडेंट्स, इसे लोअर मोस्ट प्लेन को हिट करने के लिए द मिनिमम वेलोसिटी गिवन शुड बी सच दैट ये बॉल कहने से एटलीस्ट यहां तक आ जाए, इस प्लेन को हिट ना करे. अगर वो इस प्लेन के जस्ट बाहर आता है तो डेफिनेटली वो नीचे तक आएगा. तो what is our aim? Our aim is to provide this ball that minimum velocity कि ball should be able to reach at least this point. अगर बॉल यहां तक पहुंच गया तो डेफिनेटली वो नीचे आ जाएगा, और अगर बॉल यहां नहीं यहां कहीं तो हिट करेगा तो वो लोएस्ट प्लेन को डायरेक्टली हिट नहीं करेगा. इज दैट क्लियर? सो मुझे बताओ, बॉल को यहां से यहां तक आना है, यहां तक. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? कहने से for ball to hit lowest plane, for ball to hit lowest plane, its horizontal displacement, its horizontal displacement must be how much? What must be its horizontal displacement? कहने से its horizontal displacement यहां से यहां तक will be b plus b is 2b. कहने से 2b का value is 2 into 20, that is nothing but 40 centimeter, and 40 centimeter is 0.4 meter. And its vertical displacement, its horizontal displacement is इतना, and vertical displacement
and vertical displacement. Vertical is h plus h. Can I say that is 2h, which is 2 into 10, and that is 20 सेंटीमीटर. तो आई कैन राइट 0.2 मीटर. उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? 0.2 मीटर. अच्छा, आफ्टर दिस नाउ टाइम टेकन टू रीच, if I name this point as A and this point is B, let's first find time taken to reach B, rather to reach point B from A. B से सॉरी A से B तक आने में टाइम कितना लगेगा? तो कहने से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला टाइम वाज अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी. कहने से स्टूडेंट्स मेरे केस में दिस वर्टिकल हाइट इज 2h, सो दैट इज 2 टाइम्स हाउ मच इज h. कहने से h का वैल्यू, h आपके लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0.2, तो इट्स 0.2 डिवाइड बाय g विल बी 10, सो दैट कम्स आउट टू बी, t को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 0.4 बाय 10. ये मेरा टाइम का वैल्यू है. अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हियर आई विल राइट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम. नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्पीड? कहने से स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड, वैल्यू फॉर हॉरिजॉन्टल स्पीड इज u, जो मुझे फाइंड आउट करना है, एंड टाइम आई एम गेटिंग अंडर रूट ऑफ, वी आर गेटिंग टाइम का वैल्यू एज अंडर रूट ऑफ 0.4 बाय 10, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का वैल्यू, अच्छा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज 0.4, सो दिस इज 0.4. अच्छा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बच्चों, आई कैन राइट 0.4 इज इक्वल्स टू u इंटू, कैन राइट दिस एज अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 10 रेज टू -2, ये 10 भी ऊपर जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू u इंटू 4 बार आएगा तो 2 इंटू 10 रेज टू -2 इज 10 रेज टू -1, एंड हियर वी हैव 0.4, सो ये 0.2 हुआ, तो u इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.2, सो दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू वी आर गेटिंग इट एज 2 मीटर पर सेकेंड. सो अगर आप बॉल को 2 मीटर पर सेकेंड, एटलीस्ट 2 मीटर पर सेकेंड दोगे कम से कम, तो वो लोवेस्ट प्लेन को हिट कर जाएगा. इफ इट इज लेस देन 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो लोवेस्ट प्लेन को डायरेक्टली हिट नहीं करेगा, वो इस वाले प्लेन को हिट करेगा. अच्छा, अगर 2 से ज्यादा हुआ तो गारंटेड वो लोवेस्ट प्लेन को हिट करेगा, बट मिनिमम स्पीड पूछा था, इसलिए मेरा मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड. स्टूडेंट्स, आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि सर हमें तो लोवेस्ट प्लेन हिट करना है, तो मैं नीचे तक क्यों नहीं ले रहा हूं? मुझे बताओ बच्चों, मिनिमम स्पीड कि मिनिमम में कितना दूं कि मेरा टास्क विल बी फुलफिल्ड. तो अगर मैं उसे एटलीस्ट इतनी स्पीड दे दूं कि बॉल वहां से यहां तक आ जाए, तो उसके बाद तो डेफिनेटली वो नीचे तक जाएगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इसलिए हमने ये वाला हाइट कंसिडर नहीं किया. ओके, सो द आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 21. नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन. A body is thrown horizontally with a velocity under root of 2gh from the top of a tower of height h. So height h के tower से body is thrown in horizontal direction with initial speed of under root of 2gh. Okay, it strikes the ground level through the foot of the tower at a distance x from the tower. Ground level को the body hits and that is at a distance x from the foot of the tower. The value of x is, तो मुझे x फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, उनका एक्चुअली जो डेटा है, अगर आप उसको इंटरप्रेट करो तो आपके लिए वो ऐसे है. लेट अस अज्यूम दिस इज दैट टावर. अच्छा, हियर अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ स्पीड अंडर रूट ऑफ 2gh. अच्छा, and this body followed this very path. Body hits the ground here, and from the foot of the tower, this distance is x. तो आपको ये x फाइंड करना है. अच्छा, this velocity is root of 2gh. अच्छा, आपको x फाइंड करना है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, if the height of the tower is h, height of the tower is h.
Students, we all know it's a case of horizontal projectile, and in case of horizontal projectile, time taken by the projectile to reach ground is under root of 2h by g. So I will write time taken by body to reach ground. Time taken by body to reach ground is t is equals to under root of 2h by g, under root of 2h by g. अच्छा, so therefore I will write horizontal distance is nothing but horizontal speed into time. Why? Because students, in horizontal direction speed is constant, क्योंकि acceleration 0 है और speed constant, तो I can use the formula speed is equal to distance upon time, hence distance is speed into time. तो horizontal speed into time. Now what is horizontal speed? Can I say horizontal speed is nothing but under root of 2gh multiplied by time. Students, time taken by the body is under root of 2h by g. अब अगर मैं स्टूडेंट्स दोनों के रूट को एक साथ लेकर आ जाऊं, दोनों के रूट को, दिस इज एज गुड एज, इनको अगर मैं कंबाइन करूं तो आई एम गोइंग टू हैव अंडर रूट ऑफ 2gh इंटू 2h बाई जी, तो जी गेट्स कैंसिल, तो 2h इंटू 2h द होल स्क्वायर. सो द फाइनल आंसर वी आर गेटिंग स्टूडेंट्स इज 2h. तो हियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इज 2h. और अगर आप इसके ऑप्शन को कंपेयर करो बच्चों, सो दिस मैचेस विथ ऑप्शन सी, इसका राइट ऑप्शन आएगा सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 22, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर 21. नाउ लेट्स रेफर 22. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 में दे हैव सेड a particle p is projected with velocity u1 at an angle 30 degree with horizontal. Another particle q is thrown vertically upwards with velocity u2 from a point vertically below the highest point of p. The necessary condition for the two particles to collide at the highest point. Okay, let me draw the diagram first. Question number 22, ये उनका हॉरिजॉन्टल पाथ. हियर फ्रॉम पॉइंट P अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u1 एट एन एंगल 30 डिग्री, एंड सपोज करो इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो उन्होंने ऐसी दी हुई है, ऐसा. अच्छा, इसके बाद में लेट्स टेक ये P का हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसी हाईएस्ट पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे से there is another particle named as q is projected vertically upward with speed u2. With speed what? u2. अच्छा students, the condition is what should be the relation between u1 and u2. अच्छा, उन्होंने ये एंगल भी दिया है आपको, this angle given is 30 degree. Now they are looking for condition, the necessary condition for two particles to collide at the highest point. आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि पार्टिकल P और पार्टिकल Q they both should collide at this point, at the highest point. अच्छा, अब स्टूडेंट्स पहली बात, दोनों को हाईएस्ट पॉइंट पे कोलाइड करने के लिए वेरी फर्स्ट कंडीशन इज जिस टाइम पर पार्टिकल P रीचेज एट हाईएस्ट पॉइंट एट द सेम टाइम दिस पार्टिकल Q मस्ट ऑल्सो रीच द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम. तो पहली बात, दोनों में कोलिजन तब होगा जब दोनों एक ही जगह पर एक ही टाइम पर पहुंचेंगे. अच्छा, अब मुझे बताओ इस पार्टिकल को ऊपर कौन ले जाएगा, कौन सी वेलोसिटी u2. कहने से इस पार्टिकल के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कौन करेगा, रादर वर्टिकल डायरेक्शन मोशन कौन कराएगा. कहने से इस u1 का वर्टिकल कंपोनेंट, एक्चुअली ये तो वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन है, तो इसकी वेलोसिटी u2 इज ऑलरेडी इन वर्टिकल डायरेक्शन, बट u1 जो वेलोसिटी p के पास है वो इंक्लाइंड है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. कहने से P के वर्टिकल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन. सो व्हेन आई रिजॉल्व दिस P के वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट. बच्चों अगर ये u1 ये 30, तो दिस इज u1 cos 30 एंड दिस इज u1 sin 30. अच्छा, पहली बात, if both the particle wants to collide at this point, let's name this point is r, तो पहला कंडीशन इज they both must reach point r at the same time. अच्छा, दूसरा, दोनों में कोलिजन होने के लिए कहने से
P का जो मैक्सिमम हाइट है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल, वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किसका भी होना चाहिए, Q। सो दोनों की रिक्वायरमेंट इज दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम चाहिए और दोनों का टाइम भी सेम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम सेम तब होगा जब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट विल बी सेम। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2। कहने से पार्टिकल Q का इनिशियल वेलोसिटी इज u2 और इसका इनिशियल वेलोसिटी इज u1 sin 30। अच्छा, अब स्टूडेंट इसके बाद u2 इज ऑल्सो मोशन अंडर ग्रेविटी, दिस इज ऑल्सो मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, दोनों का टाइम टेकन भी कैसा है, सेम, और दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, सेम। तो सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों की इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी सेम। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम होगा और दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी सेम है, दोनों का टाइम ऑलरेडी सेम है, बिकॉज दे वांट टू कोलाइड, सो दिस शुड बी द कंडीशन कि P का जो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ Q इन y डायरेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई कंपेयर दीज टू, कहने से u1 sin 30 इज u2, sin 30 का वैल्यू क्या होता है, हाफ, तो मुझे मिलेगा u1/2 इज u2, सो आई कैन राइट u1 इज 2 times u2। वी आर गेटिंग u1 is 2 times u2। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा, इसके बाद में दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ विल बी रेफरिंग क्वेश्चन नंबर 23। 23 में दे हैव गिवन यू द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और वो ट्रैजेक्टरी के इक्वेशन को यूज करके हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है। लेट मी रीड द क्वेश्चन। Question number 23, it's type 6. Question number 23. So this question number 23 में they have said the path followed by a body projected along y-axis is given by, they have given you equation of the trajectory which is y, that is under root of 3x minus half times एक्स स्क्वेयर। ये उनका ट्रैजेक्टरी है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी, उनको इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, y is equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। अगर आप इसको कंपेयर करो स्टूडेंट्स, तो आपको मिलेगा we get tan theta to be equals to √3। if tan theta is √3, so therefore I can conclude कि theta is equals to 60 डिग्री। अगर tan theta √3 है तो theta will be 60 डिग्री। एंड दूसरी चीजों को कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा g अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज हाफ, g अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज हाफ, तो दोनों का 2 गेट्स कैंसिल। अच्छा, u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा को उस तरफ लूं तो मुझे मिलेगा g इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर टाइम्स, कहने से कॉस 60 द होल स्क्वेयर। कॉस 60 कितना होता है बच्चों, इट्स हाफ। अच्छा, g को मैं 10 लिखता हूं which is u square times cos 60 is half, so it's 1/4। अच्छा, 1/4। so after this students I can solve this and write u square to be equals to 4 times 10, 4 times 10, तो u का value will be 2 times √10 meter per second। this is 2 times √10 meter per second। so initially body was projected with this much initial velocity। okay, 24th question। A projectile is projected with an initial velocity 6i plus 8j. If g equals to 10 meter per second square, then horizontal range is, now initial velocity u is given, u vector, and that they have given as 6i cap plus 8j cap। Now students, if u vector is 6i plus 8j, so therefore I can conclude x component of velocity is 6 meter per second and y component of velocity is 8 meter per second, and they have given us g का value as 10, g का value is 10 meter per second। they are asking range। now students, range का one formula is u square sin 2 theta by g, but that is in terms of theta। इस question में theta as such given नहीं है, we can find, but still there is another formula without theta। we know range without theta is given by 2 times ux uy by g।
ये रेंज के फॉर्मूले में हमने देखा है। अच्छा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स यू एक्स, एक्स कंपोनेंट इज 6, यू वाई इज 8 एंड जी का वैल्यू इज 10। सो दिस इज 2 5 ज़ा 10, न्यूमरेटर इज 6 8 ज़ा 48, तो 48 बाय 5, 5 9 ज़ा 45, 3 5 6 ज़ा 30, so it's 9.6 मीटर। सो रेंज आई एम गेटिंग इज 9.6 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन इज बी। लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 26, आपकी क्लास वर्क लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन में दे हैव सेड अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन अ बैंक ऑफ अ स्ट्रीम is swimming with 0.5 meter per second at an angle 120 degree with the direction of flow water. The speed of water in the stream is. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर रीड करता हूं। इनका पहला स्टेटमेंट क्या है वो ध्यान से सुनो। अ पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो मेरा एम कहां पहुंचना है, बी। याद करो एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब मुझे कौन सा पाथ चूज करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट टाइम। तो आंसर मस्ट बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बिकॉज एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब ए से चलकर बी पर जाना है। अच्छा, अगर मैं इसे डायग्राम में इंटरप्रेट करूं तो ऐसा है, लेट्स टेक द रिवर, दिस इज वन बैंक ऑफ अ रिवर एंड दिस इज द अनदर बैंक ऑफ द रिवर। फिर से लेट्स नेम इट एज पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द बैंक विच इज नेम्ड एज ए बी। सो अगर स्विमर पॉइंट ए पर है, उसे एग्जैक्टली ऑपोजिट बी पर आना है, तो डेफिनेटली ही मस्ट स्टार्ट स्विमिंग एट सर्टेन एंगल। अज्यूम करो कि रिवर का फ्लो स्पीड ऐसा है, रिवर का ये फ्लो का डायरेक्शन है। अच्छा, द स्विमर इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला है कि द स्विमर इज स्विमिंग विद द स्पीड 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्विमर की स्पीड जिसको हम वी बोलते हैं, तो आपको v कितना दिया है बच्चों, 0.5 मीटर पर सेकेंड, एंड ही इज स्विमिंग एट एन एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। स्टूडेंट्स, आपके रिवर के फ्लो मतलब इधर इसके साथ 120 डिग्री, कहने से ये 90 है और टोटल 120, तो दिस एंगल इज 30 डिग्री। हमेशा याद रखना मेरे फॉर्मूले में जो थीटा है दैट इज एंगल मेजर्ड विथ ए बी। अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ 120 डिग्री, अगर ये टोटल एंगल आपने यहां पर नहीं, ये वाला एंगल अगर मैं बोलूं ये टोटल 120 है, तो ये कितना हुआ बच्चों, 30 डिग्री। तो हमारे लिए थीटा इज नॉट 120, हमारे लिए थीटा कितना आएगा बच्चों, 30 डिग्री। थीटा विल बी 30 डिग्री एंड दे आर आस्किंग द स्पीड ऑफ वाटर। कहने से स्पीड ऑफ वाटर मतलब हमें u का वैल्यू फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम u फाइंड करना है। अच्छा, व्हाट वाज द कंडीशन टू क्रॉस, अच्छा पहले ये समझा एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंचना है, मतलब दिस इज अ केस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंस साइन थीटा का फॉर्मूला इज u बाई वी, सो आई मस्ट राइट साइन 30 टू बी इक्वल्स टू u बाई वी। अच्छा, सो यहां से u का फॉर्मूला क्या आ जाए, कहने से u विल बी इक्वल्स टू v टाइम्स साइन 30, v टाइम्स साइन 30। हाउ मच इज v? v is 0.5, कैन राइट हाफ, और साइन 30 भी क्या होता है, हाफ, तो दिस इज 1/4, कैन राइट 0.25, 1/4 इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहां पर रिवर की फ्लो स्पीड बच्चों हमें कितनी मिल गई, 0.25 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 26 हमने अभी भी सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में व्हाट दे हैव सेड, टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। दो कार सेम डायरेक्शन और सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स ये दोनों कार्स का नाम है ए एंड बी। मैं ऐसे समझ रहा हूं कि दिस इज कार ए, दिस इज कार ए which is moving in this direction with suppose rather value they have given 30 kilometer per hour, and here we have another car B. This is car B which is moving in the same direction with the same speed, that is 30 kilometer per hour. अच्छा, और इनमें जो सेपरेशन है, माना कि स्टूडेंट्स ये इनके बीच का सेपरेशन है, इन दैट सेपरेशन दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 किलोमीटर। सपोज करो ये D है which is 5 किलोमीटर।
अच्छा, द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कार जा रही उसकी स्पीड, इफ इट मीट्स द टू कार एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट्स। अब इन दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कार जा रही, सपोज करो उसका नाम सी है, तो आपको बोला है कि सी का स्पीड कितना है अगर वो इन दोनों को 4 मिनट के इंटरवल में मिलती है। मींस आप ऐसे समझो कि एट दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर कार सी यहां पर है, दिस इज कार सी, यह है कार सी, लेट्स टेक दिस इज कार सी एंड दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड v। अच्छा, ये हमने एक फोटो लिया है कब, एट t इक्वल्स टू 0। ये बातें कब की हो रही है, एट t इक्वल्स टू 0। तो t इक्वल्स टू 0 समय पर c b से मिल चुका है, तो अगले 4 मिनट में c किसको मिलता है बच्चों, a को। आपको ये टाइम इंटरवल दिया है, अगर c इस इंस्टेंट पर, जबकि टाइम 0 है, वो ऑलरेडी b को मिल चुका है, अगले 4 मिनट्स में इस c को b को मिलना है, सॉरी c को किसे मिलना है, a को। तो c की स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब एक्चुअली स्टूडेंट्स यहां पर कैसा है, c ऑलरेडी b से मिल चुका है, तो अब b हमारे क्वेश्चन का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट c और a है। यहां पर सिचुएशन ये है कि c भी मोशन में है और a भी मोशन में है, c a के पास जा रहा है और a c के पास जा रहा है। सो हियर बोथ बॉडीज आर इन मोशन। तो अगर आपको याद होगा, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन कंसेप्ट यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ बच्चों, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कहने से ये राइट साइड में जा रहा है, तो इसका वैल्यू मैं लिखूंगा 30 किलोमीटर पर आवर। इफ आई आस्क यू वेलोसिटी ऑफ बी, तो आप क्या बोलोगे, बोलो अगेन इट इज 30 किलोमीटर पर आवर। दोनों राइट साइड है इसलिए प्लस आया। अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सी, कहने से v है पर लेफ्ट है, तो आई मस्ट राइट -v किलोमीटर पर आवर। ये भी आप ऐसे अज्यूम करो कि किलोमीटर पर आवर में है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स c b को मिल चुका है, ये हमें चाहिए कि c a को 4 मिनट्स में मिल रहा है, तो c की स्पीड क्या है। मैं इस क्वेश्चन को रिलेटिव से अगर सॉल्व करना चाहूं तो दोनों में से एक को रेस्ट में लेकर आओ। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा c ऑब्जर्वर है, मैं c को क्या बना रहा हूं, ऑब्जर्वर। तो velocity of a with respect to c, you find velocity of a with respect to c, मतलब अब c रुक जाएगा और वो a के मोशन को स्टडी करेगा। मैं आपको पूछूं a का स्पीड कितना है, तो आप क्या बोलोगे 30 किलोमीटर पर आवर। पर अगर मैं c को बोलूं a का स्पीड क्या है, तो आंसर 30 नहीं होगा, क्योंकि बोथ आर इन मोशन। उसको मुझे रिलेटिव से फाइंड करना होगा। स्टूडेंट्स, ओरल कंसेप्ट से अगर मैं अप्लाई करूं, कहने से c अगर मेरा ऑब्जर्वर है तो c को मुझे स्टॉप करना होगा। कहने से c को स्टॉप करने के लिए मुझे राइट डायरेक्शन में कितने स्पीड की जरूरत है, v किलोमीटर पर आवर। अगर मैं राइट डायरेक्शन में v किलोमीटर पर आवर दे दूं c को, तो c रुक जाएगा, तो वही स्पीड तो a को भी देनी होगी। तो जो c को मैंने v दिया, उतना ही स्पीड a को दूंगा इन द सेम डायरेक्शन। सो c के रुकने के बाद a has two velocities, one is v kilometer per hour and second is 30 kilometer per hour, and that two both are in same direction, so they both must be added। तो विथ रिस्पेक्ट टू सी ए का स्पीड कितना होना चाहिए बच्चों, v प्लस 30। ये हमारा ओरल कैलकुलेशन है, बट अगर इसको मैथमेटिकली फाइंड करूं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो कहने से आंसर मस्ट बी va माइनस वीसी। बच्चों, हाउ मच इज va इज 30 माइनस हाउ मच इज vc, कहने से vc इज माइनस ऑफ v, तो माइनस ऑफ माइनस v इज प्लस, सो दैट विल बी 30 प्लस v। दिस इज वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c। अब बोलो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c का मतलब, अब c रुक गया है और c के अकॉर्डिंग a उसकी तरफ आ रहा है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर c की तरफ a जा रहा है, तो a को c तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है, 5 किलोमीटर पर आवर। किसके रिस्पेक्ट में, c। सो अगर मैं यहां पर लिखूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c, इफ दे बोथ मीट, तो आंसर इज 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां पर यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग डिस्प्लेसमेंट, रादर यूज द फॉर्मूला वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी ऑफ a with respect to c is displacement of a with respect to upon t. Displacement of a with respect to c upon t. How much is velocity of a with respect to c? Velocity of a with respect to c is 30 plus v. Displacement of a with respect to c is how much? 5 kilometer and divided by t.
अच्छा, आपको टी कितना दिया बच्चों उन्होंने, टाइम टेकन, टाइम दे हैव गिवन 4 मिनट। अगर टाइम इज 4 मिनट, सो दैट इज एक्चुअली 4/60 एंड उसको आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारे यूनिट्स आवर्स में है। सो टाइम का वैल्यू आई मस्ट राइट 4/60, 4/60 का 60 ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 15 अच्छा, सो वी आर हैविंग 30 प्लस वी टू बी इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों, 75। 30 प्लस वी 75, सो यहां से v का वैल्यू हो जाएगा 75 माइनस 30 एंड दैट कम्स आउट टू बी 45 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी। अच्छा, ये किसकी वेलोसिटी, अगर c इतनी स्पीड से मूव करेगा तो वो b और a को कितने टाइम इंटरवल मिल जाएगा, 4 मिनट के इंटरवल में। कब, जब a और b का सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 5 किलोमीटर। बच्चों अगर मैं इसका ऑप्शन मैच करूं तो दिस मैचेस विथ ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कितना क्या आ रहा है बच्चों, बी। सो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम लेवल 2 एंड द क्वेश्चन नंबर वाज 25।